Yeah, let's go. Here we go with quantifiers and determinants in English once again. Last time on Monday, we have seen, time on Friday. Saturday we had sounds. On Friday we were doing our uncountables nouns, correct? So uncountables we have finished with uncountables. Now we are going to see sentences or uncountables in English, all right? How to make sentences in English with uncountables. And what type of sentences are we going to make over here? So first of all, would like to tell you is that we are going to make sentences with uncountables with determinants and quantifiers. What do you mean by determinant and quantifier? Yes, anybody who could tell me what do you mean by determinant and quantifier? Determinant is countable. No. Most generally. What do you mean by determinant and quantifier? Please tell me. A word which shows quantity. A word which shows quantity is called determinant and quantifier. Listen to me carefully. A word which shows quantity is called determiner and quantifier. The word which shows quantity, it is what? Quantifier and determiner. For example, here we have two types of determiners in English. Okay, we have two types of determiners. Those are what? Countable determiner and uncountable determiners. Determiners का पहली बात तो मीनिंग क्या होता है? ऐसा वर्ड जिससे हम लोग को पता चलता है इसकी क्वांटिटी क्या है. ओके, उसकी क्वांटिटी पहचानने के लिए हम लोग क्या यूज करने पड़ेगा? कुछ क्वांटिफायर एंड डिटरमिनर. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स एंड क्वांटिफायर्स इन इंग्लिश. दोस आर व्हाट? काउंटेबल डिटरमिनर्स एंड अनकाउंटेबल डिटरमिनर्स. Countable determiners and uncountable determiners. We have two types of determiners in English. Now, countable determiners are what? These are the determiners which are countable from this side, and uncountable determiners from this side. And these blue one, ये जो blue में मैंने लिखा हूँ, ये जो determiners हैं, ये दोनों में use होते हैं, countable as well as uncountable. ये दोनों में use होते हैं, countable as well as uncountable. Now we have two types of determiners in English, countable determiners and uncountable determiners. और कुछ ऐसे determiners होते हैं जो कि countable और uncountable दोनों में use होते हैं. For example, if you see sum can be used with countable noun as well as uncountable noun. अब आप लोग को countable तो पता ही है, जिसको हम लोग फिंगर पे गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसको हम लोग countable noun बोलेंगे. For example, 4 pens, 2 charts, 3 beds, 4 walls, 7 cars, 9 speakers, 12 phones, etc. And what is uncountable determiners? Which cannot be counted, जो कि count नहीं कर सकते हम लोग. For example, water, bread, music, money, time, sugar, honey, alcohol, beauty, gas, etc. Next one. Now we have two types of determiners in English, countable and uncountable determiners. और कुछ count and some determiners are there which can be used for countable nouns as well as uncountable nouns. अब कुछ ऐसे determiners हैं जो कि countable noun और uncountable noun दोनों के लिए use किए जा सकते हैं. For example, sum. We can use sum for countable noun as well as uncountable noun. For example, there are some students. Student is countable noun. Yes or no? Hello? Yes, sir. Yes, sir. I don't know what the hell is happening with it. So we can hear you, sir. Wait a minute. Yeah, are you able to see my screen? Yes. So sorry. Okay. So determiners, we have two types of determiners in English, countable and uncountable. And there are some determiners which can be used for countable noun as well as uncountable noun. For example, sum. Sum can be used for countable noun as well as uncountable noun. For example, there are some students. So student is countable noun. वहां पर कुछ students हैं, कुछ मतलब यानी some. So there are some students. वहां पर कुछ students हैं. So some we can use for countable noun as well as uncountable noun. Next one, uncountable noun के साथ में some कैसे use होगा? For example, there is some water. So water is uncountable noun. I can use some with countable noun as well as uncountable noun. Next one, a lot of. A lot of मतलब यानी बहुत. I can say there are a lot of students. वहां पे बहुत सारे students हैं. And there is a lot of water. और वहां पे बहुत सारा पानी है. So water is what? Uncountable noun. Student is countable noun. I can use a lot of with countable as well as uncountable noun. Okay. Next one, any. Any I can use for countable as well as uncountable noun. For example, are there any students? वहां पे कोई students हैं क्या?
I'm using any for uncountable noun. Are there any students? वहां पे कोई students है क्या? कोई मतलब any. And is there any water? क्या वहां पे कोई पानी है? कोई पानी वगैरह है क्या उधर? Is there any water? क्या वहां पे कोई पानी वगैरह है? Okay. Yes. There isn't any water. वहां पे कोई पानी वगैरह नहीं है. Next one. Now these are the determiners which are used only for countable noun, and these are the determiners which are used only for uncountable noun. These are the determiners which can be used only for countable noun, and these are the determiners which can be used only for uncountable noun in English. All right. Now, for example, let me tell you. Now, many. Many मतलब यानी बहुत. Many मतलब बहुत, खूब. Okay. Much. Same case. जैसा many है उसके जैसे ही much. Many and much both are the same. जैसा many है वैसा much है. Many and much both are the same. दोनों भी same है, but the difference between many and much is what? Many we use only for countable noun. Many we can use only for countable noun, and much we can use only for uncountable noun. Okay. Many and much both are the same, but we can use many only for countable noun, and much we are using only for uncountable noun. So ये जो determiners है ये सब uncountable के लिए यूज होंगे. ये वाले जो determiners है ये सब countable के लिए यूज होने वाले हैं. For example, many. Many मतलब है नहीं इतना. दिख रहा है आप लोग को ये quantity कितना सारा है? बहुत. Much मतलब बहुत, खूब, है क्या नहीं? For example, I can say there are many students. वहां पे बहुत सारे students हैं. Countable noun. Many with countable noun. Next, there is much water. वहां पे बहुत सारा पानी है. There is much water. वहां पे बहुत सारा पानी है. See the quantity. See the quantity. ये स्टार मैंने क्यों लगाया हूँ? क्वांटिटी के लिए लगाया हूँ मैंने. किसके लिए? Only for quantity. Okay, इतना, बहुत सारा. There are many students. वहां पे बहुत सारे students हैं. And there is much water. वहां पे बहुत ज्यादा पानी है. So quantity. Next one, a few. A few and a little both are the same. A few means what? थोड़ा. And a little मतलब है नहीं थोड़ा. But a few we are using only for countable noun, and a little we are using only for uncountable noun. For example, a few मतलब है नहीं थोड़ा. देखो इतना, थोड़ा, थोड़ा. Now I can say a few. I have a few students in my class. मेरे क्लास में थोड़े students हैं. I have a few students in my class. और I have a little water. मेरे पास में थोड़ा पानी है. I have a little water. मेरे पास में थोड़ा पानी है. Next one, few. Few and little both are the same. Few मतलब नहीं उससे भी थोड़ा, उससे भी थोड़ा. ये देखो, उससे भी थोड़ा. स्टार मैंने क्यों लगाया वहां पर? आप लोगों को क्वांटिटी समझाने के लिए, just to understand. स्टार मैंने इसके लिए लगाया वहां पर. Few मतलब नहीं a few से भी थोड़ा. Little मतलब a little से भी थोड़ा. Few मतलब नहीं बहुत थोड़ा. So I can say I have only few chairs in my class. माझ्या क्लासमध्ये फक्त थोडे चेअर आहे, थोडेसे चेअर आहे. I have only few chairs in my class. थोड़े chairs. Okay. And I have little water in the bottle. मेरे बॉटल में थोड़ा ही पानी है. I have little water in the bottle. Next one, fewer and less. Fewer and less मतलब है नहीं एकदम नहीं के बराबर. नस्लत जमा अपन बोलतो ना, तसा है. नस्लत जमा मतलब है नहीं बहुत ही कम, बहुत 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 कम. See the quantity. बहुत कम, खूपच कमी आहे. So fewer. I have fewer इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स. मेरे पास में बहुत ही कम इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं. I have fewer intelligent students. And less is like नहीं के बराबर. It is like nothing. Less we are using for uncountable nouns. I have less water in the bottle. मतलब इन्हें मेरे बॉटल में बहुत ही थोड़ा पानी है, बहुत ही कम पानी है. Means what? नहीं के बराबर, बहुत थोड़ा. That's what less. Okay. So this is what determiners we are going to use over here. Apart from this one, numbers. Okay, numbers like you can take any number over here. For example, 3, 7, 78, 98. You can say million, billion, trillion, zillion, etc. You can take any numbers. Okay. Yes. Number आप लोग कुछ भी ले सकते हैं. So that's what we can use determiners in English. ऐसा हम लोग determiners use करेंगे English में. Okay. So these are the determiners. We are going to make sentences this week, and we are going to finish it as soon as possible. Okay. And as I've promised you that you are going to speak up just in 1 month, so I'm going to fulfill up my promise as soon as possible. All right.
So please keep on practicing at home. Don't be absent even for a single day. Second thing, on Saturday, many of the students were absent, correct? Yeah. Yeah, very nice. Would like to tell you one more thing, that I'm going to start sooner main portion of mine. Okay? If you will be absent, I won't be the responsible. You'll get the videos, you'll get the recordings only. You'll get the recordings, no problem at all. You'll get the recordings and you can watch those recordings at home. But the problem is what, my dear? If you're going to watch recording and if you're going to attend live lecture, both have chalk and cheese difference. Zameen Asman ka difference hai uske बीच में. So if you are facing problem later on, I won't be the responsible for this one. Why? Because for this we need dedication. Because for these we need your dedication. If you don't have dedication, may God help you. अगर आप लोग के पास में खाली आप लोग आ रहे हैं क्लास को, फिर मैं इंग्लिश सीख जाऊंगा, बोलूंगा, ऐसा इंग्लिश नहीं आता है. ऐसा इंग्लिश नहीं आता है. Let me tell you one more thing. I would like to tell you one story, and then after that I'll be going ahead. Now listen to me carefully. Once what happened, did I tell you the story of a CEO of a company? He was No. having soup. No, sir. No, sir. Okay, okay. No, sir. Once what happened, listen to me carefully. The students who are being absent and the people who are not taking seriously. Always remember, this is for the corporate world. Now, once what happens, there was an interview. Once there was an interview in a company, and that interview was there for a manager, for hiring a manager. And at that time, the manager had all the rounds of the interview and he cracked the interview successfully. And the company was having a rule of giving the appointment letter, the offer letter to the manager by the hand of CEO. So it was the rule of the company that CEO of the company, the chairman of the company used to hand over the offer letter to the manager, appointing new manager. He called that manager in a restaurant. उसने वो manager को restaurant में बुलाया. किसने? वो CEO ने. For having lunch. मैंने आपको पहले दिन भी बताया, बाद में भी कुछ पहले वीक में भी बताया था आपको. If you want to identify a person, you can have lunch with him. उसके साथ में आप लोग खाना खा सकते हैं. उसने क्या किया? The CEO of the company, he called that man, that manager whom he hired, he called him in a restaurant. Why? For having lunch. He called him there. They met. Hello, hi, how are you? Yeah, nice to meet you. Yeah, sit. Let's have lunch. They sat together for lunch. दोनों भी साथ में बैठे lunch के लिए. At that time, what happened, my dear? They ordered in the starter soup. एक गिलास में पानी दो मुझे जरा, कांच की. और मेरा पेन भी दो मुझे, स्केच पेन. होगा यहीं पर. सैचल में से दो मेरे. Sorry. So the moment when they ordered soup, the waiter got the soup and given to them. The owner, he was looking at the face of the manager and he didn't realize anything. So what the manager did, he took the salt cellar and started pouring into the soup. उसने क्या किया? सूप जैसे आया तो उसने बाजू में टेबल पे रखा हुआ था ना सॉल्ट शेकर, सॉल्ट सेलर, सॉल्ट डालते ना आप लोग झटक कर. उसने उठाया सॉल्ट, उठा के उसने डायरेक्ट सूप में डालना चालू किया. He started stirring it, घोलना स्टार्ट किया उसको. He started shaking it and started drinking. The CEO was looking at him. वो CEO उसके ऊपर देख रहा था. They had nice lunch together, and at the end of the lunch, the CEO said, "Nice meeting you, gentlemen. We'll see you next time. My HR team will talk to you. मेरी HR की टीम आपसे बात करेगी. We'll see you. Take care. Bye bye." As he got back to the company, वो जो CEO वो वापस कंपनी में आया, और वो जैसे कंपनी में आया, so his manager was there, and that manager congratulated him. वो manager ने उसको congratulate किया. Oh sir, congratulations, you have hired a new employee, new manager today, and you are coming from the restaurant and you had lunch with him and you have appointed a great manager for us now. So the CEO replied him that I didn't give him the offer letter. मैंने उसको offer letter नहीं दिया. बोले
मैंने लंच तो किया उसके साथ में, बट मैंने उसको ऑफर लेटर नहीं दिया. He asked him why. वो जो मैनेजर था उसका, एचआर टीम का मैनेजर, उसने पूछा सर क्यों नहीं दिया आपने वो मैनेजर को जिसको आपने अपॉइंट किया है, उसको आपने ऑफर लेटर क्यों नहीं दिया? He said actually when the starter came, the soup, जब सूप आया, स्टार्टर में सूप आया, so I was looking at him and what he did, he took the salt cellar and started pouring into the soup and he started stirring it, shaking it and he started drinking it. उसने क्या किया, जैसे सूप आया ना, उसने सॉल्ट लिया, डायरेक्ट उसने डाला उसके अंदर, उसको घोला, घुमाया और पी गया वो. So the manager was there, he asked him, so what sir? उसने नमक डाला, घोला, पी गया, तो क्या हुआ? He said actually I did not give him the offer letter because how did he know that there was less salt in the soup? And he started putting the soup unnecessarily into that, unknowingly, unnecessarily. How? मतलब वो मैनेजर को कैसे पता था कि उसके अंदर सूप में नमक कम है, और उसने डायरेक्ट सूप के लिए नमक लिया और सूप में डालना स्टार्ट किया. उसने टेस्ट नहीं किया सूप को पहले, उसने पहले नमक डाला, घोला और स्टार्ट किया उसने पीना. सो मैनेजर सोच रहा था, बोला सर इतनी बड़ी बात तो नहीं है ये, तो क्या हो गया, उसने सूप में नमक डाला तो क्या हो गया? So the CEO was there, he smiled at him and he said, really? क्या ये बड़ी बात नहीं है? Isn't it a big thing? He said, yeah sir, no. He said, अगर ये लगता है कि बड़ी चीज नहीं है, so you'll be the next to go. Next आप रहेंगे ये कंपनी से बाहर जाने के लिए. Why? Because मैं ऐसे आदमी को कैसे ले सकता हूं मेरी कंपनी के अंदर जिसने प्रॉब्लम को देखे बिना ही डिसीजन लिया. उसको मालूम था कि उसके अंदर नमक कम है, नहीं मालूम था, पर फिर भी उसने नमक क्यों डाला बिना चेक किया? मतलब मैं एक ऐसे आदमी को मेरी कंपनी में एंट्री देने वाला हूं जो कि प्रॉब्लम नहीं देखेगा, डायरेक्ट सोल्यूशन के ऊपर जाएगा. प्रॉब्लम ही नहीं देख रहा है, डायरेक्ट सोल्यूशन के ऊपर जा रहा है. क्या मैं ऐसे आदमी को मेरी कंपनी में लूंगा? नॉट एट ऑल. सेम केस. ऑलवेज रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर दिस. If you are taking any decision without knowing the problem, you'll be in the trouble. सोचो वो आदमी ने उसका दिमाग कहाँ लगाया, उसने उसको देखा कि वो सूप पी रहा है, और वो सूप के अंदर उसने देखा उसको कि उसने सूप के पीने से पहले उसने उसके अंदर नमक डाला. अननोइंगली नमक डाल के उसने क्या किया, उसको पीना स्टार्ट किया. उसको ये पता था कि उसके अंदर नमक है कि नहीं है. अगर उसके अंदर ऑलरेडी ज्यादा नमक रहता था तो उसका बाप पीता था वो. सोचने वाली बात है ना. सॉरी टू से दिस. Why? Because people do this mistake. I hope you loved the story and you have learned something great from the story. Yes. So this is what, अगर लाइफ के अंदर अगर आप लोग के अगर आप ऐसा कुछ अगर कदम उठा रहे हैं, सो पूरा प्लीज ध्यान दीजिए, उसके बाद में कदम उठाना. कुछ भी ऐसे एड़े के ऐसा कदम उठाना नहीं, वरना आप लोग बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं. लोग आपको किसी भी चीज के ऊपर जज करेंगे, कुछ भी आपको जज कर सकते हैं लोग, कैसे भी आपको जज करेंगे. उसने उसको किसके ऊपर जज किया? सूप के ऊपर, सॉल्ट के ऊपर. So this is what I want to tell you. All right. So these are what determiners. Now I would like to tell you, अभी determiners को पहचानने का कैसे, सिर्फ एक जार जिसको समझ में नहीं आया यहाँ पे ध्यान दीजिए. As you can see, this glass of water in my hand. Okay, आपको मेरे हाथ में दिख रहा है ना glass of water? Yeah. Now much. Much means what? This much. बहुत है. Okay. I can say there is much water. Okay. There is much water in the glass. बहुत ज्यादा पानी है इसके अंदर. नेक्स्ट वन, a little. A little मतलब है नहीं थोड़ा, उससे थोड़ा. I can say there is a little water in the glass. There is a little water in the glass. Much water, little water. Much water, little water. Next one, there is little water मतलब है नहीं उससे भी कम, बहुत कम है पानी उसके अंदर. There is little water in the glass. There is little water in the glass. There is little water in the glass. Much water, a little water, little water. And last one is what? There is less water. मतलब यानी पानी सिर्फ उसके अंदर इतना है. There is less water in the glass. There is less water in the glass. Less water, little water, a little water, and much water in the glass. So this is what the quantity. I hope you have understood it well. आपको समझा रहेगा कि कब कितना किसको बोलना है. So according to our mind, we have to recognize the quantity. For example,
much water, a little water, less water. Okay? As you can see the stars over here, and numbers you can know easily. Okay? Next one, let's go for the next one. How to make sentences with these. अभी के साथ में sentences बनाना कैसे with determiners and quantifiers. Yes? Sir, I have one question. Yeah, please ask. सर वो आपने अभी स्टोरी जो बताई उसके रिगार्डिंग है सर आप ये क्वेश्चन पूछने वाले होंगे कि शायद अगर वो अगर ज्यादा नमक पीता रहेगा तो नहीं सर फिर सर उन्होंने सर नमक चखा बट एक चीज के ऊपर सर देख के हम इंसान को पूरा मतलब ये नहीं कर सकते ना मतलब डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. Okay. See, how many of you have the same question? Yes, sir. Yes. सर उसकी एक गलती की वजह से सर बिकॉज सर कंपनी में मतलब अगर वो कंपनी के मतलब उसके पास स्किल्स Let me tell you one more thing, my dear. Let me tell you one more thing. सर अगर वो कंपनी के मैनेजर को हायर कर रहे तो वो देखेंगे. मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ध्यान देना मेरी बात पर सेल्फ. आप लोग को ना एक चीज सिखाता हूँ मैं आज, आप लोग कभी भूलेंगे नहीं जिंदगी में. मिस्टर उसामा, आपका काम किस चीज का है? डिजिटल मार्केटिंग, राइट? यस सर. अब मैं आपको एक चीज बोलता हूँ. Whenever you see a businessman, even whenever you see me, correct? Yes. What did you suggest me last week? Can you please tell me in front of the whole class? Please tell me. About LinkedIn profile picture. Exactly right. Exactly right. Mr. Usama Sirsikar has told me in the last week about my LinkedIn profile, and he said that, sir, please change your LinkedIn profile. Mr. Usama, why? My question is there to you. Why? अब आपको आपका आंसर मैं आपके पास से निकाल कर दूंगा. Yes, why? Because प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है और आपकी इमेज जो है, आपकी जो फोटो है वो ओल्ड थी, उसमें आप यंग लग रहे थे. अभी की मतलब करंट फोटो. हाँ, मैं उसमें छोटा बच्चा दिख रहा हूँ जरा. Yes, exactly. सर आप बुरा मत मानिए. No. Exactly. No. See, you are absolutely right at your place. Why? Because you are thinking about the business perspectives. You are thinking about the marketing perspectives. Am I right? Yes, sir. Same strategy is there. Now listen to me, all of you, please, carefully. बहुत ही जबरदस्त चीज है यहाँ पर आप लोगों को बताने के लिए. मैं आपको बताना चाहता हूँ that Mr. Usama has suggested me, and it was a really humble and great suggestion from his side, that he has suggested me to change the profile picture. And do you know one more thing? Would like to tell you, Mr. Usama. Yesterday only I did my shoot, and I have shot some of the new pics, and I'll be getting them sooner, and I'll be posting on my LinkedIn and all the other profiles as well, which are new, completely new. Yesterday only I have shot the photos for me. Apart from this one, अगर आप लोग कोई भी प्रोफेशन वाले के पास में जाएंगे, now for example, if you see Pradeep, if you see Shivdas, if you see Guddu, if you see Jyotsna ma'am, if you see that Sania ma'am, if you see that Chaitali ma'am, if you see me as well, आप लोग जो भी फील्ड के आदमी के पास में जाएंगे, वो आदमी जो फील्ड का रहेगा ना, वो उस वाली बात के ऊपर ध्यान देता है. देखो, कभी भी याद रखो. नाउ फॉर एग्जांपल, मिस्टर उसामा इज देयर, करेक्ट? ही इज फ्रॉम मार्केटिंग फील्ड. ही इज गोइंग टू फोकस ऑन स्पेशली मार्केटिंग थिंग्स. अब वो जब कोई मुझे देखेंगे ना, तो वो मेरे अंदर एक ही चीज देखेंगे कि इसकी मार्केटिंग कैसी कर रहा है, ये इसकी मार्केटिंग कौन से लेवल की है, कौन से लेवल पे मार्केटिंग हो रही है, मार्केटिंग के अंदर क्या फ्लॉज हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या एडवांटेज है, क्या फीचर्स हैं, क्या फंक्शनैलिटी है. He is going to see each and everything over there. Same case. Do you know one more thing about me? Whenever a person is speaking English, untimely, unwantedly, I can judge his grammar always. ना चाहते हुए भी मैं वो आदमी के ग्रामर के ऊपर ध्यान देता हूँ. I don't know why. Why? Because it's my passion. ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा पैशन है. मैं नहीं भी चाहते हुए सामने वाले की स्पीच गई भाड़ में, उसके ऊपर ग्रामर पे मेरा ज्यादा ध्यान जाता है कुछ भी करके. Whenever in college, when I used to listen to the speech of the teachers, I used to focus on the grammar. मैं बोला टीचर ने गलत बोला है, वो क्या बोला टीचर ने, मैं आधा मेरे ध्यान में नहीं रहता था. But I used to focus on the grammar of the teacher. Why? Because I'm expert in it, and I used to focus what my field is. Same case, my dear. जैसा वो जो मैनेजर था, उसने एक चीज उसकी देखा, और वो एक चीज उसका बैकग्राउंड बताती है.
नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. आप कुछ भी काम करते हैं ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका काम करता है वहां पर, कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये ग्लास को मैं कैसा पी रहा हूँ, अब आप लोग ये मेरे ग्लास को पानी से पीने से आप मेरा अंदाजा लगा सकते हैं मेरी पर्सनालिटी कैसी है. अभी आप लोगों ने, आपने देखा रहेगा मैं बहुत बार पानी पीता हूँ. मैं पानी कैसे पीता हूँ, कितने लोगों ने नोटिस किया है? येस, प्लीज टेल मी. अब आप लोग बोलेंगे, अरे यार आम्ही तुम्हाला बघायला थोडी येतोय, आम्ही इंग्लिश शिकवलं येतोय, काय पण तुम्ही बोलायला लागलाय यार, तुम्ही काय माझी बायको आहे का? या, वेरी गुड गर्ल. यस, क्या सीखा मैडम आपने वहां से? सर सीखा? इन्हें होता है तो क्या हेलो बोला? सर. हाँ, राइट बोलो. हैंड से पानी पीते हैं सर, दूसरी बात, बॉटल से पीते हैं सर. आज ग्लास से है. और वेरी गुड, सिप सिप करके पीते हैं सर ऊपर से. वेरी गुड, वेरी गुड, अमेजिंग. मतलब आप लोग समझ रहे हैं मेरी टर्मिनोलॉजी को. मैं आज आप लोग को एक बुक गिफ्ट करने वाला हूँ. बहुत ही जबरदस्त बुक है सबको मेरे, हाँ सबको करने वाला हूँ. मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड ने दी है मुझे बुक. वो बहुत ही जबरदस्त बुक है. आई जस्ट लव्ड इट. वो आपकी लाइफ चेंज कर देगा बुक. वो जो भी बंदे ने पढ़ा ना, उसकी लाइफ चेंज होनी है. दिस इज व्हाट माय गारंटी. दिस इज व्हाट माय Oh my गारंटी. God, sir! I'm so excited for the book. This book is really going to change your life. This is what my guarantee. Don't worry, my darling. You'll get the book on your WhatsApp. Don't worry. या सबको मिल जाएगा, आज में मिल जाएगा आप लोगों को लेक्चर के बाद में. I'm so excited, sir. You'll be, because that book is going to change. That book is going to change your life. Now let me tell you one more thing. अभी आप अगर किसी के पानी पीने से, आप मेरे पानी पीने से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं पानी किस स्टाइल से पीता हूँ. वो स्टाइल से आपको पर्सनालिटी पता चलती है. Do you know one more thing? थोड़ा लेक्चर लंबा हो रहा है. डोंट वरी, मैं आपको एक्स्ट्रा लेक्चर दूंगा मेरी तरफ से. मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ. किसी इंसान को मैं आई एम अंसार इदरीसी, आई कैन जज अ पर्सन विथ हिज सिग्नेचर एज वेल. कितने लोगों को सीखना है बात, ये काम? Me sir. Me. Okay. Me, sir. See, this is what ये मेरे स्टूडेंट्स थे पहले, लॉकडाउन के पहले की है ये. इट वाज लास्ट सितंबर 2019, पुराना है ये, लास्ट ईयर का. सो ये मेरा क्लास था, वहां का बुक है. तो बुक के अंदर देखो, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, सिग्नेचर दिख रहा है आप लोग को? क्या रासा यस सर. ये सिग्नेचर मैं पढ़ के बता सकता हूँ ये बंदा कैसा है. दिस इज कॉल्ड बिब्लियोग्राफी. Oh my God, sir. इसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी. किसी इंसान का सिग्नेचर पढ़ सकते हैं हम लोग. और ये मैं नहीं, बल्कि बिब्लियोग्राफी एक्सपर्ट जो होता है ना, साइन एक्सपर्ट, वो आपको बता सकता है कि आपकी सिग्नेचर देखे कि आप कैसे टाइप के इंसान है. बट आई बिलीव ऑन दिस स्टडी 50%. मैं ये जो स्टडी में यहाँ पे आपको पूछ रहा था, पानी पीने के हिसाब से, पानी पीने से भी आप आदमी का अंदाजा लगा सकते हैं कि आदमी कैसा है वो. उसके हेयर स्टाइल से भी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं वो आदमी कैसा है वो. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ. डिड यू सी अंबानी, लक्ष्मी मित्तल, करेक्ट? यस. वॉरेन बुफे? डिड यू सी बिल गेट्स? डिड यू सी मार्क जुकरबर्ग? यस. या. नाउ लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन. कभी आप लोगों ने वो लोगों को देखा है कभी ऐसा कि मार्क जुकरबर्ग ने इधर से ऐसे कटिंग मारा हुआ है, अंबानी ने इधर से ऐसे कटिंग मार के इधर से तुर्रे बिर्रे निकाला हुआ है, ऐसे लाल बिल बाल के, ऐसे बाल खड़े करके? मिला कभी आपको ऐसा? No, sir. कभी आपने देखा है कि ब्रेसलेट पहन के घूम रहा है? No, sir. हैव यू एवर सीन देम? No, sir. उनका हेअर स्टाईल भी बताता है कितना अच्छा है वो. अगर आप लोग देखेंगे आपले चौकातले छपरी असतात बघा, चौकात बसून रावडे ना मला काय करायचंय, उसको आप देखो, उसके बाल का स्टाइल देखो आप लोग, उसका स्टाइल देखो, इधर बाली उधर बाली. सॉरी टू से दिस, अगर आप लोग करते रहेंगे तो सॉरी. हाँ सॉरी. उसको आप देखो, उसके बाल का स्टाइल देखो आप लोग, बाल कैसे कटे हैं उसके. उसका दाढ़ी का स्टाइल देखो आप लोग, दाढ़ी इधर से ऐसी मार के यू जो जेब्रा. यहाँ से कट क्या मार रहा है, यहाँ पे कट क्या लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है प्रियंका, पूजा, अर्चना. वो कपड़े कैसे पहन रहा है, कुत्ते का मुंह बना हुआ है इधर. फटे हुए सर. सर आपकी बात सर. नाउ लेट मी टेल यू मिस्टर उसामा, सी, अब वो जो पानी आप किसी को, इस इंसान को देख रहे हैं, मैं आपको एक चीज सुनाता हूँ. वंस व्हाट हैपेंड, प्लीज आप लोग को शायद नहीं समझेगा आधे लोगों को, बट आधे लोगों को समझ में आ जाएगा, बट मैं सबको समझाऊंगा. वंस व्हाट हैपेंड, देयर वाज अ मैन, एक आदमी था, बहुत बड़ा आदमी था वो. ही वाज वेरी व्हाट कैन वी से, एजुकेटेड मैन वाज देयर. बहुत ही एजुकेटेड मैन था. एंड ही वाज सिटिंग लाइक दिस, कूल.
ऐसे पैर वगैरह फैला के ऐसे बैठा था वैसा आदमी। तो एक आदमी आया अंदर, नाइस क्लोथ्स एंड ऑल, नाइस डिसेंट कपड़े पहना हुआ था वो आदमी। ओके, तो वो आदमी को लगा ओ अरे यार बहुत बड़ा आदमी दिख रहा है यार, ये तो बहुत टैलेंटेड, बहुत ही एजुकेटेड आदमी दिख रहा है ये। आया वो, तो उसने क्या किया, वो बड़े आदमी जेंटलमैन ने पैर उसके ऐसे पसार के बैठ गया। वो उसने पैर ऐसे मांडी डाला, मांडी डाल के पैर उसने पीछे लेकर बैठ गया। उसने उसको पूछा, वो आदमी बैठा उधर, उसने उसको पूछा आपका नाम क्या है? तो उसने बोला मेरा नाम है अब्दुल रज़ाक। क्या बोला वो? अब्दुल रज़ाक। हाँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ग्रामर है अपना इधर, थोड़ा सा लैंग्वेज टीचर है ना अपन, तो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान जाता है। उसने बोला अब्दुल रज़ाक नाम है मेरा। तो वो आदमी ने जैसे नाम सुना उसका, तो जेंटलमैन ने वापस से पैर ऐसे लंबे करके बैठ गया उसके सामने। अब उसके जो चेले लोग थे, उसके जो शिष्य थे आजू बाजू में घूमने वाले उसके, फिर उसके जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स थे वो बाजू में बैठे थे, वो उसके ऊपर ध्यान दे रहे थे कि सर कैसे कर रहा है अपना। वो आदमी जब चले गया तो उसने वो टीचर को पूछा अपने, सर एक्सक्यूज मी, हमने आज कुछ देखा नया। बोले क्या? बोले सर आपने पहले आपके पैर लंबे थे, वो जब आदमी आया तो आपने पैर ऐसे बांध के बैठे, फिर आपने वो आदमी को पूछा आपका नाम क्या है, उसने बोला अब्दुल रज़ाक है, तो आपने वापस से पैर फैला लिए। बोले ऐसा क्यों? देखो स्टूडेंट्स लोग कितना सोच रहे थे उसके बारे में। सेम केस, सेम केस। वहां पे उसने बोला एक्चुअली पहले मुझे लगा कि वो आदमी लिटरेट है, एजुकेटेड है, बाद में मुझे पता चला कि वो आदमी इलिटरेट है। तो उसके जो स्टूडेंट्स लोग बोले आपको कैसे मालूम पड़ा? उसने तो बोला भी नहीं। बोले उसने जो उसका नाम बोला ना, वो नाम गलत बोला उसने उसका। ओ माय गॉड! बोले कैसा? बोले उसने बोलना चाहिए था अब्दुल रज़ाक, और उसने बोला अब्दुल रज़ाक। ओ माय गॉड! फक्त ल आणि र चा डिफरन्स झाल्यामुळे तिथं काय झालं, कचरा झाला त्याचा। अब मुझे पता हो कि वो उसका पर्सनालिटी जज करेगा कि नहीं उसके ऊपर, वो एग्जैक्टली करेगा आपके एक बात के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल सपोज यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, और आप लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और ऐसे बाल रख रहे हैं आप लोग, ऐसा खड़े करके एकदम ऐसे मस्त फंकी, इधर से लाल पीले कलर, इधर से पीले नीले कलर, ऐसे इट्स माय लाइफ यू, आप जा रहे हैं हेलो सर, हे बघा आई एम शाहरुख खान एंड आई एम सलमान खान, फटी हुई पैंट बींट, ऐसा मला जॉब पाहिजे, आई एम रैपर यू। वो बोलेगा गेट लॉस्ट, चल घरी, चल फुर्सत में निकल, पहली फुर्सत में निकल। एग्जैक्टली हकल दे लेगा वहां पे। व्हाई? बिकॉज ही इज गोइंग टू जज यू लाइक दिस ओनली। उसके एक एक काम की वजह से आपको जज करेगा वो आदमी कैसा है वो। इसके लिए बोलते हैं लंच, ट्रांजैक्शन एंड ट्रैवल। ये बहुत जबरदस्त चीज है। और उसके अंदर एक और चीज ऐड करो, सिग्नेचर। जिस दिन मैं फुर्सत में रहा, मूड में रहा ना, आप लोग को उस दिन मैं सिग्नेचर सिखाऊंगा। सिग्नेचर पढ़ते कैसी है, पहले आप लोग मुझे आपकी सिग्नेचर बताना, उसके बाद में मैं आपको पूरा सिग्नेचर सिखाऊंगा कि सिग्नेचर को पढ़ते कैसे है। आप लोगों को भी समझ में आएगा, ओह माय गॉड ऐसा होता है सिग्नेचर। आपको खुद को यकीन आएगा कि अरे यार ऐसे भी हो सकता है। यस गुड्डू से, वो अब्दुल में र का कैसे प्रोनाउंस मैं समझा नहीं। क्योंकि करेक्ट नाम जो है वो अब्दुल रज़ाक है, अब्दुल रज़ाक नहीं है। और वो जो पर्सन था उसके मम डैड ने अब्दुल नाम रखेंगे तो गलत नाम है वो। अब मैं सुनील को अगर बोलूंगा सुनीला, चलेगा क्या? बोले मेरे अब्बा ने तो सुनीला रखे थे। कुछ भी, रियल नाम वही है। अब आप लोग अगर मेरा नाम देखेंगे जहाँ कहीं पे भी, अब आप लोग को अगर दिखेगा मेरा नाम, यू विल फाइंड देयर एवरीवेयर ऑन लिंक्डइन इवन यू विल फाइंड माय नेम लाइक दिस। आप लोग को मेरा नाम कभी भी देखो आप लोग आपका नाम कैसे लिख रहे हैं ना, बहुत ज्यादा मैटर करता है वो। इससे मालूम पड़ेगा आप लोग कितने इंटेलिजेंट है, कितने टैलेंटेड है, और आप लोग कितने एजुकेटेड और कितने बड़े ढक्कन है। सी when I write my name like this. Excuse me, sir. Yeah, madam. Sir, I want to learn that thing. Don't worry, I'll teach. One day I'll teach that. Don't worry. मैं आप लोग को सिखाऊंगा सर वो जरूर। मला शिकायचं तर सुनावलेला. मैं आपको बताऊंगा। See, this is what Ansar Idrisi है ना सर वो। See, हाँ अभी दिख रहा है आप लोग को मेरे नाम के ऊपर ये कहीं पे देखा क्या आप लोगों ने? सिंबल नो सर. No, sir. ये वाला काहीतरी नवीनच लिहितो राव, काहीतरी काय पण करतो, तुझ्या बापाचं का इंग्लिश? नहीं, ये करेक्ट वे इंग्लिश लिखने का। ये करेक्ट नाम लिखा हूं मैंने। इफ यू सी, अब मैं आप लोग को एक चीज सिखाता हूँ, प्लीज ध्यान दीजिए यहाँ पर। अभी मेरे यहाँ पर एक भाई है मेरा, कौन है वो? मेरा माझा भाऊ। कौन है माझा भाऊ? हाँ माझा भाऊ इथं आहे ना एक, कार्तिक आहे माझा भाऊ। कौन है?
ओनली कार्तिक भाऊ आहे माझा. का? कारण की कार्तिकचं नाव मला लय आवडतं. लोंढे. करेक्ट कार्तिक? Yes, sir. हा, व्हेरी गुड बॉय. रॉंग लिहिलाय हा. सॉरी. वाय? का बरं असं? बिकॉज सी, पे अटेंशन, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ आप लोगों को मैं. What is this in English? What is this? Save. What is this? Take. What is Save. this? Make. Good. What is this? Make. Rice. Yeah, correct. Now in English there is a rule. सैटरडे के दिन इसके लिए गलती से भी एब्सेंट नहीं रहना. सैटरडे के दिन मैं ये रूल कराने वाला हूँ सब. मैं ये रूल कराता हूँ और कराने वाला भी हूँ. सैटरडे के दिन गलती से भी एब्सेंट रहना नहीं. अगर रहे तो फिर लपड़े हो जाएंगे आप लोग के. If you see, there is a rule in English that E at the end always silent. E at the end always silent in English. There is a rule in English that whenever E is coming at the end of a word in English, it will be completely silent. ये मैं rule आपको आज ही सिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिए please. Whenever E is going to come at the end of a word in English, it will be completely silent. English में जब कभी भी E आएगा last में तो वो क्या हो जाएगा? Silent रहेगा. For example, save, correct? Take. जब कोई भी ऐसे खाली E आ रहा है, E के ऊपर नीचे कुछ है क्या? आजू बाजू में E के ऊपर नीचे ऐसे कुछ है कि E के? No. नहीं है. E अकेला आ रहा है. E will be completely silent. For example, make. We don't say make a. We say take. We don't say take a. We say save. We don't say save a. We say write. We don't say write a. We say rice. We don't say rice a. Means what? E is coming alone. Allah. E is coming alone. E is coming alone. Yes or no? Yes. In English, there is a simple rule. Whenever E is coming alone at the end of a word, it will be completely silent. Now, अब जो कार्तिक भाई ने अपना नाम लिखा है उसका कार्तिक लोंढे, हा नाव गलत आहे. का बरं? कारण की जेव्हा आपल्या इथं फॉरेनर येतील, द मोमेंट व्हेन द फॉरेनर विल कम एंड विल सी हिज नेम, दे विल कॉल हिम कार्तिक. बुरा नहीं मानना हाँ दोस्त. वो लोग कार्तिक का नाम कैसे बोलेंगे? मिस्टर कार्तिक लोंढ. लोंढ नाही, लोंढे आपण. अरे इथं काय लिहिलंय आपण इथे लोंढ लिहिलंय. हे कुठल्या लँग्वेज मध्ये लिहिलंय हा नाव? स्पॅनिश. अरे कौन से लैंग्वेज में लिखा है वो? English. इंग्लिश. एब्सोल्युटली. तो वहां पे रूल किसका अप्लाई करेगा वो? Nika. ऑब्वियसली इंग्लिश का. यस और नो? सो इन इंग्लिश व्हेनेवर ई इज कमिंग एट द लास्ट पोजीशन, दैट ई विल बी साइलेंट. वो आके इधर हमारे कार्तिक का ई साइलेंट कर डालेगा इधर लोंढे का, और वो बोलेगा मिस्टर कार्तिक लोंढ. ओए फटके दिन तुला माझा भाऊ अंकित. अब उधर से अंकित आया और अंकित ने लिखा ऐसा, अंकित लोखंडे सपोज. अब वो लोखंडे का क्या करेगा? वो आके वो बोलेगा ई, वापस से साइलेंट करो. मिस्टर अंकित लोखंड. ओए लोखंड बिकंड है, लोखंडे. उधर से आया अपना दोस्त, कौन? प्रदीप. प्रदीप अवगड़े. अब उसने क्या करा? प्रदीप अवगड़. वो अवगड़ नहीं, वो अवगड़े मी. यहाँ पे उसको लास्ट में दिखा ई, उसने उठा के वो ई कर डाला साइलेंट. अब वो फॉरेनर को कैसे बोलेंगे कि बाबा ये अवगड़े है, लोखंडे है, लोंढे है? हाउ? वहां पे लगता है एक एक्सेंट, उसको बोलते हैं एक्यूट एक्सेंट. क्या बोलते हैं इसको? Acute accent. एग्जैक्टली. ये आपको जल्दी से कौन सी भी क्लास के अंदर पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा. एक्यूट एक्सेंट. अभी एक्यूट एक्सेंट रहता क्या? ये ध्यान दीजिए प्लीज. एक्यूट एक्सेंट इज अ सिंबल विच यू कैन सी देयर ऑन ई. आप लोग को ई के ऊपर दिख रहा है अभी ये सिंबल, उसको बोलते हैं एक्यूट एक्सेंट. दिख रहा है ई के ऊपर? Yes. This is called acute accent. For example, cafe, cafe. उसको साइबर कैफे को कैफे बोलते हैं ना, आपको क्या कैफ बोलते? नो. वो acute accent आने के वजह से उसका साउंड हो गया उधर a. Because of that acute accent, the sound has become a. Cafe, cafe. Same case. अभी वहां पे कोई बंदा है, वो जा रहा है किसके लिए? कंपनी के अंदर. उसने जाके दिया वहां पे रिज्यूम, पहले झटके में रिजेक्ट हो जाएगा वो. उसको बोलेंगे जा निकल गया, घर पे जा भी सीधा. इट इज नॉट रिज्यूम, इट इज व्हाट? रेज़मे, 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 रेज़मे. इट इज व्हाट? रेज़मे. इट इज नॉट रिज्यूम. जब आप लोग ऐसे लिखेंगे कंपनी में जाके आपके रेज़मे, ओ माय गॉड, आपल्याला हाच पाहिजे ना आपल्या कंपनीमध्ये. अरे दुसरे जाऊ दे भाडमध्ये, मला हा पाहिजे आपल्याला. व्हाई? बिकॉज उसने कुछ नया लिखा है. ग्रेट. यहाँ पे हो जाएगा वो रेज़मे. सेम केस जर आपल्याला बोलायचं आहे तर अवघडे
तर आपण तिथं काय करणार, ॲक्यूट ॲक्सेंट लावणार तिथं आपण. अवघडे. सेम केस. लोखंडे, हाउ टू राइट लोखंडे, लाइक दिस. लोखंडे, ई विल बी विथ एक्यूट एक्सेंट. सेम केस लोंडे, अब वहां पे लोंडे कैसे आएगा, ई विथ एक्यूट एक्सेंट. आता हा झाला कार्तिक लोंडे. एक्झॅक्टली, दिस इज करेक्ट. दिस इज व्हाट, अंकित लोखंडे, प्रदीप अवगड़े. वाई, अब करेक्ट है वो. ये चीज आपका पर्सनालिटी बताता है कि आप लोग कैसे हैं. आपको आपका नाम ही सही नहीं लिखने आ रहा है, ओ माय गॉड. अरे आपका नहीं, सभी लोग का प्रॉब्लम है यहाँ पर, सबका प्रॉब्लम है. द मोमेंट व्हेन आई राइट माय नेम लाइक दिस, सामने वाला पहली बात तो नाम को ही देख के पहले सोचता है यार इससे बात करने का कि नहीं करना, बाप दिख रहा है यार अपना, यार ये तो काहीतरी नवीन लिहिला आहे. नहीं, वो डिजाइन नहीं है, वो रूल है उसके पीछे. अंसार इदरीसी. नाउ कितने लोगों को मेरा सिग्नेचर देखना है? Me, sir. जी सर. बताता हूँ मैं, देखो. अब आप लोग को मैं मेरे सिग्नेचर बता रहा हूँ, जो कि डिजिटल सिग्नेचर है. हैव अ लुक हियर, ये मेरा सिग्नेचर है. That's great. ये सिग्नेचर ऐसा क्यों है मालूम है आपको? जो मेरा नाम है ना, पूरा नाम है मेरा इसके अंदर, पता है आपको? हाँ, अंसार तो हो गया यहाँ पर, ANSAR. आपको ये दिख रहा है आई, बाद में मैंने आई बनाया. यस. इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, आप लोग बोलेंगे ओ माय गॉड आई नेवर न्यू दिस वन. आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ उसके अंदर में क्या है. स्टूडेंट्स आर समटाइम्स वेरी डेंजरस. सॉरी. अब आप लोग को दिख रहा है इदरीसी. अब मेरे इदरीसी का जो स्पेलिंग है ना, ध्यान देना है. मेरे इदरीसी के स्पेलिंग में आता है IDRISI. ये मेरा सरनेम है. ओके, इदरीसी. अब मेरा सिग्नेचर ऐसा है कि मैंने सिग्नेचर के अंदर मेरा पूरा नाम लिखा हूं, अंसार इदरीसी. अंसार तो आपके सामने है, ANSAR, करेक्ट. नाउ इदरीसी, I is there. I. Next, D. Next, this is what kind of R. ये R बनाया मैंने यहाँ से ऐसा. उसको अगर आप उल्टा थोड़ा घुमा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा R. Next, this is what S. S. यहाँ से लेके मैंने यहाँ पे सर S आएगा. क्लियर कर रहा हूँ मैं इसको. I. दिख रहा है? सो IDRISI. पूरा इसके अंदर यहाँ से आता है D, यहाँ से आता है S और यहाँ से आता है I. तो IDRISI और ये वाला है मेरा R. तो मतलब मैंने एक I के अंदर पूरा इदरीसी लिखा हूं मैंने उसके अंदर. एंड एट द एंड देयर इज अ डॉट. शॉर्ट फॉर्म है वो पूरा. सो एक साइन के अंदर, एक लेटर के अंदर मैंने पूरा मेरा सरनेम लिखा हूं. तो ये साइन, इसको आप लोग को मैं बाद में बताऊंगा. ऐसी साइन आप लोग कर सकते हैं. आपको दिख रहा है वहां पे एक भी लेटर को कट नहीं कर रहा हूं मैं. एक बार जो पेन मारा मैंने, पेन मार के उसको कैसे लिख रहा हूं, मेरा A बनाने का स्टाइल, N बनाने का स्टाइल, S, इवन मेरा R, सब यूनिक है. ऐसा यूनिक सिग्नेचर आपको मारना है. सर इसमें एक्यूट एक्सेंट नहीं आएगा सर? अब यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर उसने जो है ये डिजिटल सिग्नेचर मेरी असिस्टेंट ने, मैंने उनको मार कर दिया, उन्होंने इसके ऊपर ये डाला नहीं इधर मैक्रन, वो मैडम ने डालना भूल गई उधर. तो ये मेरा ओरिजिनल सिग्नेचर है कि ऐसा मार के इसके ऊपर यहाँ पर ये मैक्रन आएगा इधर, जो अभी वो था ना डंडा, देखो ये वाला, ये इधर आएगा इधर इसके ऊपर. वो मैडम ने अभी तक के लगाया नहीं उसको. मैडम हमारे बहुत उल्टे उल्टे काम करते हैं, उनको बोलूंगा मैं एक, करते 4. सो ये अपना साइन है. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली सिग्नेचर पढ़ते कैसा, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी थियरी है. सो दिस इज कॉल्ड ई रूल. ई रूल हमारा बोलता है इंग्लिश का, whenever e is coming at the end of the word completely it will be silent. alone e अगर आया तो, और e के ऊपर नीचे अगर ऐसे कुछ रहा तो e का साउंड चेंज हो जाएगा. गेटिंग इट? सो आप लोग आपका नाम कैसे लिख रहे हैं बहुत ज्यादा मैटर करता है. अगर आप लोगों ने आपका नाम गलत लिखा, उसके ऊपर से आपका पर्सनैलिटी पता चलेगा. सो दिस इज इट व्हाट डू वी से मिस्टर उसामा. तो मैं आपको ये बात बोल रहा था, जो आदमी का जो फील्ड होता है ना, आप देखो कभी भी अगर आप कोई वॉच वाला है ना, आप उसके पास जाओ. ये मैंने बहुत बार नोटिस किया हूँ बात. ये मैं अक्सर जो बाहर जाता हूँ ना, तो ऐसे मैं आंख बंद करके नहीं खड़े रहता हूँ.
हाँ बोला ना तुम्ही काय करता तुम बोला ना आइंदा बन के नहीं जाता हूँ मैं कहीं पे भी जब जाता हूँ तो मेरे आँख कान नाक सब खुले करके जाता हूँ वाई क्योंकि मुझे सीखने के लिए मिलता है वहां से जब आप लोग कोई शॉप में जाओ देखो आप या फिर कोई वॉच वाला है उसको बाहर मिलो आप कहीं पे भी आप उसको देखो वो आपकी खास कहाँ पे ध्यान देगा मालूम है वॉच के ऊपर वो आपकी वॉच के ऊपर ध्यान देगा कि आपने वॉच कौन सी पहनी है कैसी पहनी है कहाँ पर पहनी है कैसा पहना है कौन सा कलर है क्या है उसका कौन सा मॉडल है वगैरह वगैरह जूते वाले को देखो अक्सर देखो आप लोग आपके जूते को देखेगा दूसरी बात में एक और आपको टिप देना चाहता हूँ बहुत ही गोल्डन टिप है अभी मुझे ध्यान में आया अचानक में जो कि मैं जल्दी से मेरे ध्यान में आता नहीं तो मैं बोलता भी नहीं हूँ अगर किसी इंसान को अगर पहचानने का रहेगा ना कैसे पहचानेंगे दूसरी बात ड्रेसिंग से अगर पहचानने का रहेगा तो नो सिग्नेचर नो लंच नो डिनर एंड नो ट्रैवल अगर खाली ड्रेसिंग से पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे वो आदमी को अभी मैंने बोला भी कैसे पहचानेंगे उसको एक चीज है ड्रेसिंग के अंदर एक चीज है जिससे आप लोग वो आदमी को पहचान सकते हैं और वो है उसके शूज कैसे मैचिंग शूज मैचिंग नहीं ध्यान दो खाली मैचिंग तो है ही बट एक बार और याद रखना आप लोगों ने अक्सर देखा रहेगा मैं अभी आप लोग को बेट लगाता हूँ साइकोलॉजी देखो क्या बोलती है ह्यूमन साइकोलॉजी मी तर कॉमर्स आहे मला काय करायचं साइकोलॉजी पढ़ो फ्यूचर में अगर आपको अगर अच्छा बाप बनने का रहेगा अच्छा भाई बनने का रहेगा अच्छा बेटा बनने का रहेगा अच्छा आदमी बनने का रहेगा अच्छी औरत बनने का रहेगा आपको जानना बहुत जरूरी है अदरवाइज मे गॉड हेल्प योर लाइफ कोई भी इंसान को जब आप लोग देखेंगे व्हेनेवर यू आर सीइंग द पर्सन जस्ट लुक एट द शू कितनी बार ऐसा हुआ रहेगा आप लोग के साथ में मैं अभी आप लोग को बोलूंगा नहीं आप लोगों को खुद को मालूम है आप लोग कौन से कितना आप लोगों ने क्या किया है कितनी बार ऐसा रहा हुआ रहेगा कि फेस्टिवल है दिवाली है ईद है आप लोगों ने पूरा ऊपर से नीचे तक के पूरा सजा नाइस लाली पाउडर डेंटिंग पेंटिंग एकदम मस्त लेकिन शैम्पू विम्पू ये कलर कलर विलर विलर करके नाइस शर्ट नाइस कुर्ता बिरता नाइस वॉच मस्त इधर फिर ये ब्रोच वगैरह लगा के पूरा नाइस पैंट्स वगैरह पहन के लास्ट में आप लोग क्या करते आता शूज जरा माझे बेकार आहे जाऊ दे कोण बघणार आहे खाली वर बघणार लोक खाली काय करणार ते शूजला कोण बघते जाऊ दे मारो दे जाऊ दे जुने घालतो मी शूज आप लोग जूने पहन लेते हैं कभी कभी शूज को पॉलिश भी नहीं करते ये ऐसा नो कितने लोगों ने किया है ऐसा अभी कोई बोलेगा तो नहीं बट सबको मालूम है सब लोगों ने किया है हाँ या ना यस सर वेरी गुड लिटरली Yes, sir. एग्जैक्टली मैं आपको एक बात बोलता हूँ अगर आप लोग देखें किसी इंसान को अगर आपको पहचाने है उसके शूज देखो डायरेक्ट सबसे पहले कि उसने शूज कैसे पहने उसके शूज से उसकी पहचान होती है जिसके शूज एक नंबर है मतलब नहीं वो आदमी अंदर से भी परफेक्ट रहेगा और आज के जमाने में खाली शूज नहीं बल्कि आप लोग उसका देख सकते हैं बेल्ट उसका वॉलेट उसकी वॉच और उसके शूज ये चीज ऐसी है वॉलेट अगर उसने जब निकालेगा तब देख सकते हैं आप लोग उसको निकाला तो और नहीं निकाला तो बेल्ट है ना शूज भी है अरे उसके घर पे जाते क्या अभी उसकी वॉच भी आहे नाहीतर वॉच घातलेली 50 रुपयाची स्वारगेट वरनं घेतलेली 100 रुपयाचे शूज स्वारगेटचे फुटपाथ वरनं घेतलेले है का नहीं आणि बेल्ट पहना वो अपना ऐसे कुत्ते का मुंह बना हुआ उसके इधर इतना चौड़ा बेल्ट उससे मालूम पड़ा कितना बड़ा छपरी है सो उसका बेल्ट उसके शूज उसकी वॉच उसका वॉलेट ये सब बहुत मैटर करता है कि वो आदमी कैसा है वो सर वॉच क्यों मैटर करती है सर वॉच क्यों मैटर करती है वॉच क्यों मैटर करती है हु कैन टेल मी दिस वॉच क्यों मैटर करती है अब मैं आपको एक बात बताता हूँ अभी आप लोगों ने घड़ी है घड़ी मैं आप लोग को मेरा घड़ी दिखाता हूँ जस्ट अ मिनट जल्दी जल्दी 2 मिनट सॉरी मैं आपको मेरा वॉच दिखाता हूँ ओल्ड वॉच है मेरा बट आप लोग खाली वॉच देखो उसके अंदर मैं आपको 2 चीज बताऊंगा उसके बारे में एक नॉर्मल आदमी जो रहेगा ना बिजनेसमैन रहेगा सी आज का लेक्चर हमारा कुछ एक्स्ट्रा चीज है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का बोलो आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड का बोलो वो बताने के अंदर जा रहा है बट डोंट वरी मैं आप लोग को ये लेक्चर एक्स्ट्रा दूंगा मेरी तरफ से ओके या जो भी है पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं आप लोग को 1 लेक्चर एक्स्ट्रा फ्रॉम माय साइड बट ये लेक्चर आप लोग को ऐसा रहेगा कि ये बाकी लेक्चर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसके अंदर बहुत सारा चीजें आई थिंक आज सीखने भी मिला रहेगा सो मेन थिंग इज व्हाट अगर किसी का वॉच अगर आप लोग देखेंगे आप लोगों ने देखा ऐसे कुत्ते का मुंह का वॉच ऐसा बड़ा वॉच एकदम किसके हाथ में देखा रहेगा वो प्लीज टेल मी ओके स्पोर्ट्स पर्सन ऐसा बड़ा वॉच बड़ा चिल्ड्रन वॉच हाँ बच्चों के ओके किड्स और
और किसके हाथ में देखा है? किड्स के हाथ में देखा रहेगा आप लोगों ने। और nothing. इनका प्रोफेशन अलग है, मतलब थोड़ा रॉकिंग प्रोफेशन। रॉकिंग प्रोफेशन मतलब यानी आप बोलने के लिए थोड़ा सा डर रहे हैं। एक्चुअली रॉकिंग प्रोफेशन मतलब यानी वो आदमी प्रोफेशनल नहीं रहता है वो, करेक्ट? वो आदमी प्रोफेशनल नहीं रहता है वो। ये मेरा वॉच है। अगर आप लोग अगर देखेंगे आप इसका जो साइज है, इसके साइज से आदमी को पता चलता है कि बाबा ये लड़का कितना प्रोफेशनल है और कितना बड़ा झोपड़पट्टी है। हैव अ लुक हियर। अभी जो मेरा वॉच है, अगर आप लोग देखेंगे, वॉच दिख रहा है, मेरा वॉच मेरे हाथ के बाहर नहीं जा रहा है, वो मेरे हाथ के बाहर नहीं जा रहा है। बिकॉज ऑफ दिस वॉच आई कैन टेल यू द डायल ऑफ द वॉच। ये जो डायल है, वॉच का डायल है, ये डायल से पता चलता है कि आदमी कौन से लेवल का है। अगर आप लोग देखेंगे डायल, अगर देखेंगे वो मेरे हाथ के बाहर नहीं जा रहा है। आजकल के लड़के लोग इतना बड़ा डायल का पहनते हैं, उससे मालूम पड़ता है ये प्रोफेशनल नहीं है, ये प्रोफेशनल नहीं है। उसका वॉच अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे नीचे पड़ा हुआ रहता है ऐसे इधर, बोले सलमान भाई ब्रेसलेट लगाता है, उससे मालूम पड़ेगा ये सलमान का फैन है, मतलब ये भी मर्डर करने वाला है अपनी कंपनी में आके। ओ माय गॉड, मे गॉड हेल्प यू। कार खाली टाकतो होता पिऊन बिऊन आपल्याला, मतलब उसको पर्सनैलिटी वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा वो। अगर आप लोग बोलेंगे माय बेस्ट पर्सनैलिटीज शिवाजी महाराज, तो लोग आपको भी वही नजर से देखेंगे, ओ शिवाजी महाराज, उनका भक्त दिख रहा है ये। हाँ, शिवाजी महाराज बहुत जबरदस्त आदमी थे, ये भी वैसा थोड़ा बहुत तो रहेगा, उनको ऑर्डर करते तो। अगर मैं बोलूंगा माय बेस्ट पर्सनैलिटी इज सलमान खान, ओ माय गॉड, तो लोग बोलेंगे यार हे नको जा बाबा तू, नको नको नको, आम्ही रिस्क नाही घेणार का? क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी से आपको पर्सनैलिटी मैच करेंगे वो लोग। सॉरी टू से दिस। अभी आप लोग इसमें से सलमान के फैन रहेंगे कुछ लोग, सॉरी मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको खाली पर्सनैलिटी बता रहा हूँ। वॉच से मालूम पड़ेगा। सेकंड थिंग, अभी वॉच कैसी है उसकी, कौन सी कंपनी की, ये भी मैटर करता है। अभी आप लोगों ने देखा रहेगा कोई तो ऐसे 25 रुपए की वॉच पहन के घूम रहा है वो प्रोफेशनल आदमी, तो उसके ऊपर से पता चलेगा कि बाबा आदमी कैसे काम करेगा। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। आज आपको मैं एक ऐसी टिप देने वाला हूँ, ऐसी टिप देने वाला हूँ, ऐसी टिप देने वाला हूँ, जिसको सुनने के बाद में आप लोग धूम खुश हो जाएंगे एकदम। छोटी टिप है बट आपकी जिंदगी बदल देगी। कितने लोगों को रिच होना है? रिच। I want to I multi-million. want to become rich. हाँ, अब मैं आपको जो बोलने जा रहा हूँ ना, उसको खाली कान खोल के सुनना, गौर से ध्यान देना। इफ यू वांट टू बिकम रिच, एक्ट लाइक अ रिच पर्सन। Yes. If you want to become rich, act like a rich person. For example, do you know one more thing? मेरा कहानी अगर आप लोग सुनेंगे, before some years I was nothing. Now today I'm using, मैं पहले मेरी ऐसी हालत थी कि मेरे को एंड्रॉइड मोबाइल नहीं मिलता था. Today I'm using मोबाइल ऑफ एप्पल. Today I'm using the laptop of Apple. मेरे पास लैपटॉप भी एप्पल का है, ये भी एप्पल का है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं बहुत भारी हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा मैं बहुत रिच हूँ. I'm just telling you, I'm just trying to be so that the way of living it will change. मैं आपको कुछ टिप देने वाला हूँ. आप वो टिप को अगर कभी करेंगे, आप लोग रिच हो जाएंगे एक दिन जरूर. जैसा आप लोग करते हैं वैसा आप लोग बनते हैं, जैसा आप लोग सोचते हैं वैसा आप लोग बनते हैं. और अगर आप लोग ने सोचा भी नहीं वैसा, तो आप लोग कभी बनेंगे भी नहीं वैसा. याद रखो. आप लोग बोलते हैं काय नाही होते रे मला तर कोरोना 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 कोरोना, खरंच खरंच कोरोना होतो. मग का? कारण तोंडच तसं केलंय ना, कोरोना हो, पैसेच नाहीये. खरंच पैसे नसतात मग नंतर. का? कारण की रडत बसलेलो ना आपण. दूसरी अपना सबसे बेकार बात मैं आपको बोलता हूँ, ध्यान देना. ओके, अगर आपको रिच होना है, पॉइंट नंबर 1, टिप नंबर 1 इज व्हाट? स्टार्ट वियरिंग ड्राई क्लीन क्लोथ्स. अरे ये क्या है? स्टार्ट वियरिंग ड्राई क्लीन क्लोथ्स. अपन नॉर्मल मिडिल स्टैंडर्ड वाले फैमिली जो रहते हैं, मिडिल क्लास वाले जो लोग रहते हैं, वो लोग ड्राई क्लीन वाले कपड़े नहीं पहनते. करेक्ट? घर में अपने घसड़ 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 घसड़. I'll tell you one thing. आज से आप लोग क्या करो, आपके जो कपड़े वो ड्राई क्लीन के लिए दो और वो कपड़े पहनो. पहनने के बाद में एक तो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा कपड़े का, और दूसरा आपकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी. ओ माय गॉड, मेरे कपड़े वो ड्राई क्लीन वाले पहनता हूँ. आपके चलने के अंदर ही देखो स्टाइल कैसे बदलता है. जस्ट टेल मी वन मोर थिंग. मैं अगर आप लोग को एक बात बोलूंगा ना, आप लोग हंसेंगे. जिस दिन अपन न्यू बनियान या तो फिर न्यू अंडरवेयर वगैरह पहनते तो अपना अपन कौन से लेवल पे रहते? ओ माय गॉड, नवीन घातलंय आज. अंदर से जो फीलिंग होती है ना उसकी, कितने लोगों को लग रहा है मैं सच बात बोल रहा हूँ?
यस सर। यस अंदर से जो फीलिंग आती है, हाँ, अंदर से जो फीलिंग आती, ओ माय गॉड आज नवीन घातलं रे। भले से 4 दिन के बाद में उसकी कुछ औकात नहीं रहेगी, बट जिस दिन आप पहनते हैं उसको, उसका मजा ही अलग है। सेम केस जब आप लोग ड्राई क्लीन वाला क्लॉथ पहनेंगे, आप लोगों का दिमाग यहाँ नहीं यहाँ रहेगा। सेकेंड थिंग, टिप नंबर 2, छोटी सी टिप है, देखो याद रखो, महीने में कितना जाएगा आपका पैसा? मैक्सिमम 1000 रुपीज, मैक्सिमम। बहुत ज्यादा कपड़े पहन भी लिए अगर आप लोगों ने, सूट वगैरह पहनते, मैक्सिमम 1000 रुपीज आपका ड्राई क्लीन में जाएगा। मरेंगे नहीं अपन पर, गारंटी। हाँ, साल का 12,000 रुपीज ओनली, मरेंगे नहीं, खर्चा करो। दूसरी बात, आप लोग कहीं पर भी जा रहे हैं, कुछ भी आप लोग खरीद रहे हैं, किसी से बार्गेनिंग मत करो, डोंट बार्गेन। ओ एवढत करा ना, ओ तेवढत करा ना, ओ असंच का। अब मेरे पास में भी लोग आते हैं, जैसे कि मैं भाजीपाला बेच रहा हूँ इधर बैठ के, आओ सर एवढी फी, आओ सर आओ कमी करा ना। सर इंडिया में बार्गेनिंग तो जरूरी है सर, नहीं तो ना सर नहीं, अब वो सी मैं आपको जो बता रहा हूँ उस चीज को सुनो खाली। आप लोग बार्गेनिंग कर रहे हैं, बात बराबर है, बार्गेनिंग करके आपको कितना बचेगा? मैक्सिमम कितना बचेगा? आप रिक्शा वाले से बार्गेनिंग करते 5 रुपए बच जाएगा, किसी टीचर से बार्गेनिंग कर रहे हैं 1000 2000 बच जाएगा। पर आप वो बार्गेनिंग करके आपके माइंड को पुअर बना रहे हैं। आप अपने आप को बता रहे कि मैं पुअर हूँ इसलिए मैं बार्गेनिंग कर रहा हूँ, मैं पुअर हूँ इसलिए बार्गेनिंग कर रहा हूँ। बार्गेनिंग मत करो, मिनिमम लेवल बता रहा हूँ। और किसी का अगर अच्छा लेवल है, अच्छा लेवल और रिच बनना चाहता है वो, उसके लिए मेरे पास टिप है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, व्हाटएवर यू आर डूइंग, व्हाटएवर यू आर बाइंग, जस्ट गिव मनी एंड गिव एक्स्ट्रा टिप। आप टिप देने के बाद में देखो, आप लोग कभी होटल में गए, 5 स्टार 10 स्टार होटल में जाने के बाद में जब आप लोग बैठते हैं वहां पर, आप लोग पूरा खाना वगैरह खाते हैं, उसके बाद में वो जो वेटर उधर खड़े रहता है गरीब मुंह बना के, तो आप लोग का दिल बोलता है यार इसको पैसे दे। आप लोग नहीं चाहते हुए भी उसको जब टिप निकाल कर देते हैं, टिप देने के बाद में आपको कैसा फील होता है? कभी देखा है आप लोगों ने? रिच। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आप लोगों का स्टाइल ही चेंज हो जाता है। आप लोग वहां पे टिप देने के बाद में आपका जो चलने का स्टाइल है ना, वो भी चेंज हो जाता है। जब वो आपको बोलता है वेलकम सर, ओ माय गॉड, आपका स्टाइल चेंज हो जाता है। टिप नंबर 2 मैं देने जा रहा हूँ आप लोगों को। पॉइंट नंबर 1 कि आप लोग ड्राई क्लीनिंग वाले कपड़े पहनो। टिप नंबर 2 कि अगर किसी को भी, अगर आप लोग कहीं पर जा रहे हैं, बार्गेनिंग मत करो, कम से कम। और अगर आप लोग के पास पैसा है थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं जाएगा, ये सब होशियारी मारने के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए जाएगा। ओ माय गॉड, 2 लाख! जो ऐसे करता है वो कभी जिंदगी में करोड़पति नहीं बनेगा, माय गारंटी। Today, I would like to tell you, at this early age, I have my Apple MacBook Pro, I have my iPhone, I have my own bike, I have my own flat as well. मेरा खुद का है. Why? Right, At this sir. early age, you know why? Because I want to be that what I wanted to be. Getting it? Now telling you the third tip. आपको तीसरा टिप दे रहा हूँ. If you are going anywhere, just try to give the tip to the poor people. गरीब लोग को थोड़ा सा टिप दे डालो, आप लोग रिच बन जाएंगे उससे। कैसा बनेंगे मैं आपको बताता हूँ। सपोज अभी आप लोग हेयर कटिंग के लिए जाते हैं, आप लोग हेयर कटिंग के लिए, यस, या यू गो फॉर हेयर कटिंग, राइट? आज मुझे लग रहा है कि मेरे क्लास के अंदर पैशनेट लोग भी हैं जिसको सक्सेसफुल होना है। आई एम सो हैप्पी फॉर दिस वन। नाही तो आधी लोग चले गए होते, जाऊ दे राव काहीतरी दुसरं चाललंय, आज इंग्लिश नाही चाललंय तिथं। आई एम सो हैप्पी। सो बाय द वे, टिप नंबर 3 मैं देने जा रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग कभी हेयर कटिंग करने के लिए जाते हैं ना, महीने में कितनी बार जाते हैं आप लोग? एक बार, यस, एक बार, करेक्ट। साल में कितनी बार जाते हैं आप लोग? 12 बार मैक्सिमम, करेक्ट। मैक्सिमम 12 टाइम्स। बहुत ज्यादा एड़े चाले करने वाला रहेगा बंदा तो 14 टाइम्स जाएगा, राइट? लेडीज लोग या भी पार्लर के अंदर जाते हैं, करेक्ट। 1000 रुपए को तो शैम्पू मार के लेकर आते हैं, बोले शैम्पू करो, यस ना? लेडीज लोग का टॉपिक नहीं निकाल रहा हूँ मैं खाली बता रहा हूँ आप लोग को। Yes, sir. अभी अपना भाई है, वो जाता है उधर, वो मला असे डेव्हिड धवनची करा कटिंग, मला सलमानची कटिंग करा, शाहरुखची कटिंग करा, एवढे करा, इतकरी, वो ऐसे उसके बाल ऐसे बंदर टाइप काट देता, उसको वो 1000 रुपए देकर आता है। एक चीज मैं आपको बोलता हूँ, आप लोग क्या काम करो, अगर बिल अगर आप लोग का 100 रुपीज हुआ है ना, उसको 150 दो, रख। नेक्स्ट टाइम उसको क्या करो, 150 दो। आपको मैं गारंटी देता हूं, नेक्स्ट टाइम जब आप लोग उसके पास में जाएंगे ना, जब आप लोग नेक्स्ट टाइम उसके पास जाएंगे, तो वो कटिंग करता रहेगा ना, उसको छोड़ेगा, वो बोलेगा माई बाप
प्लीज कम सर, प्लीज कम. अब उधर जो करोड़पती उसके पास में बैठा है वो बोले अरे मी मर्सिडीज वरनं आलोय, मर्सिडीज मधनं उतरलोय, इथं बसलोय, मला माझ्याकडे बघा ना. आणि तो बघ सायकलीवर आलाय तो. त्याला सर 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 काय घेतलंय रे याच्यापासून. लिटरली करेगा कि नहीं करेगा वो. ओ माय गॉड, ये मेरा ऐसा क्लाइंट है जो मेरे को बिना बोले बार्गेनिंग तो नहीं करता है बल्कि उससे ज्यादा देकर जाता है. अब अगर आप लोग ज्यादा नहीं दे सकते एटलीस्ट बार्गेनिंग मत करो, किसके भी साथ मत करो. क्यों? क्योंकि आपके ऊपर असर करेगा. क्यों? उसकी बात मैं आपको बताता हूँ इफेक्ट कहाँ पे होने वाला है. आप लोगों ने बार्गेनिंग किया, बार्गेनिंग करने के बाद में आपको ऐसा फील होता है कि यार मैं बार्गेनिंग क्यों कर रहा हूँ. हर एक इंसान कुछ भी काम करता है ना, उसके पीछे एक बात होती है क्यों करता है वो. आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं टाइम पास गोटी खेलने के लिए इंग्लिश आ रही है पढ़ने के लिए? आप नहीं, आप लोग को पैसा कमाना है, आगे कंपनी में आगे आपके जॉब चाहिए, आप लोगों को कहीं बाहर जाना है, कुछ ना कुछ पर्पस रहेगा ना आपके पास में. फॉर दैट पर्पस यू आर कमिंग टू मी एंड यू आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश. अपार्ट फ्रॉम दिस वन वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग कि आप लोग बार्गेनिंग कर रहे हैं, उसके पीछे पर्पस क्या है कि मैं गरीब हूँ करके मैं बार्गेनिंग कर रहा हूँ. मैं गरीब हूँ इसके लिए मैं बार्गेनिंग कर रहा हूँ. अब आप लोगों ने जहाँ पे बार्गेनिंग करना छोड़ा मतलब आप लोग अपने आप को रिच फील करा रहे हैं. और अगर आप लोगों ने बार्गेनिंग किया, आपने 5 रुपए 10 रुपए 1000 रुपए तो बचा लेंगे, बट उसके बाद में आप लोग कभी भी रिच नहीं बनेंगे. क्योंकि आपके मेंटालिटी के अंदर, मस्तक के अंदर आपके क्या घुस गया कि बाबा मैं गरीब हूँ. और आप गरीब कैसे सोचेंगे और आप पैसा जमाने की कोशिश करेंगे, रोते रहेंगे और आप लोग जिंदगी में कभी भी आगे नहीं जाएंगे. ना कभी आप लोग रिच बनेंगे, ना कभी आप लोग एक्सपेंसिव चीज अफोर्ड करेंगे, ना कभी कुछ करेंगे. दिस इज व्हाट माय गारंटी वुड लाइक टू टेल यू. सर बट प्रोडक्ट की अगर मतलब वो प्रोडक्ट की वैल्यू अगर वो ज्यादा है मतलब हाँ जितनी वैल्यू है. अब देखो वो एक अलग चीज है. आप लोग बार्गेनिंग में कहाँ बोल रहा हूँ आपको कि उस लेवल पे करना जहाँ पे आपको पता है. और अगर कोई जबरदस्ती में चंपू बना रहा है तो फिर उसके अंदर आपकी गलती है. नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. अगर आप कोई प्रोडक्ट है, अभी ये आईफोन है समझो, करेक्ट. अब इसका वैल्यू समझो कितना है, 30,000 है समझो इसका वैल्यू. ओके, सपोज इसका वैल्यू 30,000 है. अब मुझे कोई आदमी, अभी इसका फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू कितना है उसका 30,000 है, और मैं सामने वाले को जबरदस्ती में जाके इसको बोलूँ मैं तो 40 में लूंगा इसको, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, पागलपन है. मैंने क्या बोला आप लोग को, आप लोग बार्गेनिंग कहाँ मत करो जहाँ पे आपको उसका वैल्यू मालूम है, इसका सही ये रेट है, उसके अंदर बार्गेनिंग करके आप उसको कम मत करो, एटलीस्ट उतने में ले लो. दूसरी बात, आप लोग टिप अगर देनी तो गरीब लोग को टिप दो जो कि आप लोग से छोटे हैं. फॉर एग्जाम्पल वेटर रहा उसको दे सकते हैं, कटिंग वाला रहा उसको दे सकते हैं, रिक्षा वाला रहा. आपण काय करतात, मला 1 रुपया आत्ताच पाहिजे ते, मला माहित नाही कुठनं पण आणून दे, किती रुपये झाले, माझे बिल किती झाले, 79 ना, 80 रुपये तुला दिले, 1 रुपया दे, नाही तू कुठे जाणार नाही, आज दिवसभर माझ्यासोबत थांबायचं, मला 1 रुपया द्यायचं तू. ऐसा करेंगे कभी भी आगे नहीं जाएंगे, याद रखो. 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये 1000 रुपये छोड़ दो उसके ऊपर, ज्यादा मत ध्यान दो. अरे मैं आपको मैं एक चीज बताता हूँ, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. मेरा एक और बैच है, हालांकि मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बट मेरा एक और बैच है, ये स्पेशल बैच है मेरा. यहाँ पे आपका फी आपको तो पता है 11,000 रुपीज आपका फी है. नेक्स्ट वाले जो बैच है मेरा उसका 12,000 फी है मेरा. वुड लाइक टू टेल यू, मेरा एक बैच है, था मतलब पहले, अभी नहीं है बैच मेरा. मेरा एक बैच था जिसका फी था 1,000 रुपीज पर मंथ. कितना? ओनली 1,000 रुपीज पर मंथ. अब आप लोग बोलेंगे वो बैच कहाँ गया? वो बैच एक्चुअली पहले था, अभी मैं वो बैच को अलग तरीके से सर्कुलेट करता हूँ. मतलब यानी उनका मैं खाली होमवर्क लेता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, खुद के लिए मैं टाइम निकाला हूँ उसके लिए. वो बैच को मैं खाली हेल्प बोलकर लोगों को प्रोवाइड कर रहा था. अब आप बोलेंगे हेल्प करने का तो फ्री में करने का था. फ्री में लोगों को वैल्यू नहीं आती, कभी भी याद रखो, कभी भी नहीं आती फ्री में वैल्यू. वो मैं बैच को हेल्प बोलकर कर रहा था. उसके अंदर स्पेशली स्टूडेंट्स ऐसे आते थे जो कि बेचारे यतीम रहते थे, गरीब रहते थे, जिनके खाने के वांदे रहते थे. क्योंकि मेरे को मालूम है वो लोग के मेरे पास से पढ़कर जाएंगे. उन लोग को मैं क्या करता था, उन लोग का कोर्स का ड्यूरेशन भी ज़्यादा बड़ा था और हर एक चीज़ डिटेल में नहीं थी, रिकॉर्डिंग भी उनको नहीं थी, एप्लीकेशन पे रिकॉर्डिंग्स वगैरह उन लोग को नहीं थी, डेटा उन लोग को फ्री में नहीं था, हर एक चीज़ उन लोग को फ्री में नहीं थी वहाँ पर. बट उन लोग का फ़ी मैंने कम रखा था. क्यों? क्योंकि उन लोग मेरे को दुआ देंगे. और उसके अलावा जब मैं उनको पढ़ाता हूँ, जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसकी वजह से मेरे को रिच फीलिंग आएगी और एक दिन मैं रिच बनूंगा भी. एंड एज यू कैन सी नाउ एज वेल, आई एम जस्ट ऑन माई वे. मैं भी मेरे रास्ते पे हूँ अभी भी, ऐसे नहीं कि मैं नहीं हूँ. So this is what I'll show you inshallah in future where I'll be with you. तो आप लोग तो मेरे टच में रहेंगे, मेरा एप्लीकेशन आप लोगों ने डाउनलोड किया भी है, आप लोग टच में रहेंगे. फेस टू फेस भी किसी दिन हम लोग जब लॉकडाउन खुल जाएगा, मैं पार्टी रखने वाला हूँ स्टूडेंट्स के लिए, मैं आपको ज़रूर बुलाऊंगा उसके अंदर. So this is what exactly
I'm just telling you, कितने लोगों को टिप अच्छा लगा ये मेरा बात का? Me, sir. Nice, sir. Great. Thank you. It was so grateful. Valuable, sir. Thank you. So Sir. this is what at least see, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी चीज है, छोटी सी, आप उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो. देखो आपको कैसा रिच फीलिंग आता है. ओ माय गॉड, जब आप लोग रिच फील करेंगे आप लोग रिच बन भी जाएंगे. और अगर आप लोग अंडर द क्लाउड फील करेंगे आप लोग वैसे ही होते जाएंगे. यस, कोई कुछ बोल रहा था. Sir, या मैम. I also want to suggest everyone to read The Secret Book. अमेजिंग, दैट इज अ बुक. सेम बुक में जो आपके बारे में बात बोल रहा हूँ ना, इट इज द सेम. वेरी गुड. एग्जैक्टली, मैडम जो बोल रही है आपको द सीक्रेट बुक, वो मैं आज आप लोग को सबको सेंड करने वाला हूँ. वही बुक है, सबसे बेस्ट बुक है वो बेस्ट सेलिंग ऑथर की बुक है एक, और बहुत ही जबरदस्त बुक है. मैडम ने इसका नाम लिया द सीक्रेट. मैं वही बुक आज आप लोग को सबको सेंड करने वाला हूँ. Yes, sir. आप लोग वो बुक पढ़ो, आप लोग का मेंटालिटी चेंज हो जाएगा. जैसे उसका कोई भी पेज निकाला और कभी भी पढ़ा तो भी हम बहुत ओह पॉजिटिव. माय गॉड, बहुत जबरदस्त बुक है. मैं आज आप लोगों को सबको देने वाला हूँ बुक. वो आप लोग के व्हाट्सएप पे उसको एक बार आप पढ़ो. आपका मेंटालिटी नहीं चेंज हो गया ना, आप लोग बोलेंगे ओह माय गॉड, नाउ आई वांट टू बिकम अ रिच, आई वांट टू बिकम मल्टी मिलियनर. आई डोंट वांट टू बिकम मिलियनर, आई वांट टू बिकम मल्टी मिलियनर पर्सन. सो दिस इज इट एग्जैक्टली हाउ यू कैन डू इट. ओके, सो प्लीज ट्राई टू चेंज योरसेल्फ. आप लोग अपने आप को जब तक कि चेंज नहीं करेंगे, आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है, याद रखना है. तो आज का लेक्चर आप लोग का जो था वो मैं आप लोग को एक्स्ट्रा दूंगा. डोंट वरी अबाउट इट. ओके, ये मैं लेक्चर आप लोग को एक्स्ट्रा दूंगा मेरी तरफ से. बट इतना है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने मिला रहेगा. और जिस दिन मैं एकदम मूड में रहा उस दिन मैं आप लोग को साइन भी सिखाने वाला हूँ कि इंग्लिश में साइन को पढ़ते कैसे है, किसकी साइन कैसी रहेगी तो वो साइन का मीनिंग क्या निकलता है, वो भी सिखाऊंगा मैं आप लोग को. ऑलराइट, Yes, sir. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास में. छोटा सा दिमाग है बट ये दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं मेरी. टॉपिक निकलता है तो मैं बताता हूँ, वरना तो ऐसे बिना टॉपिक के बताऊंगा तो लोग बोलेंगे अरे यार क्या टाइम पास चल रहा है क्या. नहीं, तो टॉपिक निकलता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा. बहुत सारी चीजें मेरे पास में, ऐसा आगे फुर्सत में आपको कभी बताता हूँ. ऑलराइट, आप लोग को ये लेक्चर चाहिए आपके एप्लीकेशन के ऊपर, क्या इसको नहीं डालूं मैं उधर? सर चाहिए सर. ओके, मैं इसको भी पोस्ट करता हूँ उधर. ओके सर मुझे Yes, आपसे sir. एक क्वेश्चन था सर, पूछना था. सर अभी डेली क्लासेस हो रहे हैं बट सर टाइम मतलब बहुत कम मतलब हो रहा है, मिलता मैं नहीं आप ज्यादा लोग टाइम मैं स्टडी आप करने लोग के लिए. मैं आप लोग को और भी चीजें कुछ बताने वाला हूँ आगे चल के कि आपको स्टडी करना कैसे. कल मुझे ये बात याद दिलाना आप स्टार्टिंग में आने के बाद में. तो मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ स्टडी करना कैसे है और उसका रिजल्ट कैसे निकलने वाला है. ईच एंड एवरीथिंग आई विल बी टीचिंग यू. ओके सर. Don't worry. Even tomorrow I'm going to show you how to practice at home and what exactly are you going to practice so you can get oriented results. और आपको मैं 1.5 month के अंदर, मैंने जैसे आप लोगों को बोला था, I'll be getting you the results surely. मैं आपको results दूंगा तो दूंगा. Don't worry. Yes, sir. यस सर. Okay. Cheerio. Cheerio, sir. Okay, sir. Cheerio. Cheerio.